हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में। सिमेट्री ऑपरेशन जो हमारे पास अभी तक हमने किया क्रिस्टल्स के इंटरफेशियल एंगल्स तक, उनके बारे में स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में। तो इसके अतिरिक्त जो हमारे पास क्रिस्टल है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं सिमेट्री, जिसको हम अंडरस्टूड कर सकते हैं थ्रू द सिमेट्री ऑपरेशंस और थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। इनकी टर्म्स में हम किसी क्रिस्टल्स की जो सिमेट्री है उसको समझ सकते हैं। तो What are the symmetry operations? Symmetry operations क्या होते हैं कि symmetry operations हम कैरी आउट करते हैं किसी भी क्रिस्टल्स के अंदर थ्रू लाइंस। लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री होता है एंड हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है कि अगर इसके अराउंड हम सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आफ्टर सिमेट्री ऑपरेशंस जो क्रिस्टल की जो अपीयरेंस है वो सिमिलर मिल सकती है हमें, तो उनको हम बोलते हैं सिमेट्री ऑपरेशंस। उसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री वो ज्योमेट्रिकल एंटिटी थ्रू विच द सिमेट्री ऑपरेशंस कैन बी कैरिड आउट, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कौन से होते हैं? पॉइंट ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री, रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड रोटेशन इन्वर्जन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की वो हमारे पास ज्योमेट्रिकल एंटिटी थ्रू विच हम सिमेट्रिकल ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। सो देयर आर 5 elements of symmetry. First, plane of symmetry. Second, axis of symmetry. Third, center of symmetry. Fourth, rotation, reflection, axis of symmetry, fifth is that rotation, then उसका हम करें invert, rotation, inversion, axis of symmetry. So these are the 5 elements of symmetry. First is that plane of symmetry, second axis of symmetry, third is center of symmetry, and fourth is that rotation, reflection, axis of symmetry, fifth is that rotation, inversion, axis of symmetry. So we will do start from plane of symmetry. Plane of symmetry is that symmetry element which will pass out through the crystal, is an imaginary plane and which bisect the crystal into two halves such that one half is the mirror image of the second half. One half is the mirror image of the second half. So that is the plane of symmetry. In case of a cubic crystal, these are divided into two sets. First is rectangular plane of symmetry and second is that diagonal plane of symmetry. Diagonal plane of symmetry. Rectangular plane of symmetry and diagonal plane of symmetry. जो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है हमारे पास, जो हमारे पास क्रिस्टल होता है उसके जो फेस होते हैं इनके मिड से लाई करता है, मिड में लाई करता है और पैरेलल होता है अपोजिट फेस के, लाइक this one parallel to this face. So this is the rectangular face of symmetry, rectangular plane of symmetry, and lie between and opposite faces, and which is parallel to the this neck or any another faces.
So there are six faces in case of a cubic crystal. So there are three rectangular plane of symmetry. There are three rectangular plane of symmetry. For example, this one face, this one face, and this one face. So there are six face, and so there will be three rectangular plane of symmetry. Next आते हैं diagonal plane of symmetry. Diagonal plane of symmetry. This plane of symmetry, this plane lies opposite angle, touch the opposite axis को touch करता है. For example, like this. So this one plane, this is the rectangular diagonal plane of symmetry. This one opposite axis को क्या करता है, ये touch करता है. So this is the diagonal plane of symmetry. There are 12 axes in the case of cubic crystal. So there will be 6 diagonal plane of symmetry. 6 diagonal plane of symmetry. So these are about the plane of symmetry. वो imaginary plane जो lie करता है crystals में से, जो divide करता है crystal को 2 halves में, so that one half is the mirror image of the second half. Next is that axis of symmetry. Axis of symmetry वो imaginary line जो पास करते हैं क्रिस्टल में से, such that अगर हम रोटेट करवाते हैं क्रिस्टल को through this line through 360 angle, then in 360 degree rotations उस क्रिस्टल की हमें एक बार भी सिमिलर अपीयरेंस मिल सकती है, 2 times भी मिल सकती है, 3 times भी मिल सकती है. तो हम उसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री. उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री. सो अगर हमारे पास आफ्टर रोटेशंस टुवर्ड द एक्सिस अगर हमें बिल्कुल आइडेंटिकल ही मिलती है कॉन्फ़िगरेशन क्रिस्टल की, देन दैट रोटेशन इज नोन एज अ प्रॉपर रोटेशन. That rotation is known as the proper rotation, and that axis is known as the proper axis. हम उस axis को बोलेंगे proper axis. So these are about the axis of symmetry. In case of a cubic crystal, there lie 4 fold axis of symmetry, 3 fold axis of symmetry, and 2 fold axis of symmetry. There are 4 fold, 3 fold, and 2 fold axis of symmetry. Next आता है center of symmetry. जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो पॉइंट को क्रिस्टल में से कि अगर हम उसके एक साइड जाते हैं हमें जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी वो अगर हम उसके अपोजिट जाएंगे सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी. इस साइड जाएंगे तो इस साइड मिलेगी, इस साइड जाएंगे तो इस साइड मिलेगी. तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री. किसी भी ये हमारे पास होता है वन ही, किसी क्रिस्टल में एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है. कितना होता है, एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है. उसके बाद आता है रोटेशन देन रिफ्लेक्शन. रोटेशन देन रिफ्लेक्शन प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री. एक हम क्या करेंगे, पहले क्रिस्टल को हम रोटेट करेंगे एक एक्सिस के अराउंड, देन हम उसको रिफ्लेक्ट करेंगे एक प्लेन के अराउंड, तो उसको हम बोलेंगे रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री. फॉर एग्जांपल, if there is a P configurations and if we rotate, then it's like this. If we draw a plane of symmetry, then it's like this. ये हमें ऐसा मिलेगा. तो this is the rotation reflection axis of symmetry. उसके बाद आता है rotation inversion axis of symmetry. In this case हम पहले सेम रोटेट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन को, देन उसको इन्वर्ट करेंगे. तो अगर हमारे पास रोटेशन रिफ्लेक्शन के बाद, रोटेशन इन्वर्जन के बाद अगर हमें उस कॉन्फ़िगरेशन की एनेंशियोमॉर्फॉर्म मिलती है, हमें क्या मिलती है, एनेंशियोमॉर्फस फॉर्म मिलती है,
तो दैट इज हमें आइडेंटिकल नहीं मिलती, एनाइंशोमर्स मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइप की रोटेशन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रोटेशन। हमें क्या मिलती है? इम्प्रॉपर रोटेशन हम उसको बोलेंगे, और जो हमारे पास एक्सिस है उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर एक्सिस। तो these are about the element of symmetry. Now elements of symmetry के बाद आता है law of symmetry. Law of symmetry says that कोई भी हमारे पास सब्सटेंस का कोई भी क्रिस्टल है तो उसके सारे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री सेम होते हैं। लॉ ऑफ क्रिस्टल ये कहता है कि इफ एनी क्रिस्टल ऑफ द सेम सब्सटेंस देन इट हैज द सेम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल there are 23 elements of symmetry. There are 23 elements of symmetry होते हैं। तो these are about the symmetry operations and elements of symmetry. Now we will do about crystallographic axis and axial ratio किसी भी क्रिस्टल को स्टडी करने के लिए हम चूज करते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, उसके डायरेक्शंस को, उसकी ज्योमेट्री को अंडरस्टूड करने के लिए। तो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या होते हैं? वो थ्री लाइंस, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या होती हैं? वो थ्री लाइंस जो मीट करती है किसी एक पॉइंट पे और जो पैरेलल होती हैं एजेस ऑफ द क्रिस्टल के, जो पैरेलल होती हैं उनको हम बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। लाइक दिस हेयर, फॉर एग्जांपल, दिस इज OX, this is OZ and this is OY. These are the three crystallographic axes which is chosen for the study of the crystals, of their geometry, of their directions. So these are the crystallographic axes. And axial ratio क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हम कोई चूज करते हैं, एक यूनिट प्लेन चूज करते हैं जो इंटरसेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस वन इज द प्लेन, this one is the plane which is chosen as a unit plane. This one A, this one B and this one C. This is the unit plane, standard plane which cut the crystallographic axis at A, at B and at C point. And OA is the intercept made by this plane on the x-axis. So this one is, let's say it's A intercept, and OB, the intercept is the made by this plane on the z-axis. So let we say this is the B intercept and this is the small c intercept. So OC is equal to C intercept. तो जो रेशो होता है इस इंटरसेप्ट, द रेशो ऑफ द इंटरसेप्ट विच इज मेड बाय द यूनिट प्लेन ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इज नोन एज द एक्सियल रेशो। हम उनको बोलते हैं एक्सियल रेशो। द रेशो ऑफ इंटरसेप्ट विच इज मेड बाय द यूनिट प्लेन ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इज नोन एज द axial ratio. So here A ratio, B ratio, C is the axial ratio, which is the ratio of the intercept of the unit plane ABC, which is made by on the crystallographic axis. Now, Hoyle laws of indices. Whose law of indices? उसने अपनी टर्म्स में इस क्रिस्टल को स्टडी करने के लिए दिया था हुइज लॉ ऑफ इंडिसेस। हम उनको उसकी इंटरसेप्ट की फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं। उसने कहा कोई भी क्रिस्टल है जो उसके इंटरसेप्ट होते हैं वो इक्वल हो सकते हैं, या तो जो हमारे पास इंटरसेप्ट होते हैं ऑफ यूनिट प्लेन के जो इंटरसेप्ट होते हैं उसके इक्वल हो सकते हैं, या जो यूनिट प्लेन है उसके इंटरसेप्ट के क्या हो सकते हैं? होल नंबर मल्टीपल हो सकते हैं। होल नंबर मल्टीपल ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय यूनिट प्लेन ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। On the crystallographic axis. Third point, it says that
जो हमारे पास इंटरसेप्ट है या 1 या 2, वो इंटरसेप्ट इन्फिनिटी भी हो सकता है उस प्लेन का, इफ दैट प्लेन इज पैरेलल टू क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। मतलब वो प्लेन का वो पार्ट अगर कट नहीं करता क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे, देन इंटरसेप्ट ऑफ दैट हमारे पास फेसेस में भी इन्फिनिटी हो सकते हैं, वो 2 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, तो इनफाइनाइट इंटरसेप्ट भी हो सकता है उस प्लेन का। तो दीज आर अबाउट द फीचर्स ऑफ द क्रिस्टल विच इज गिवन बाय द हुज लॉ इन टर्म्स ऑफ इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट है जो हम चूज करते हैं क्रिस्टल कोई भी प्लेन का, वो यूनिट प्लेन के इंटरसेप्ट के इक्वल भी हो सकता है, उसका होल नंबर मल्टीपल भी हो सकता है, और या फिर अगर वो कट नहीं कर रहा है एक्सिस को, देन वो क्या हो सकता है, इंटरसेप्ट इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो दीज आर अबाउट द हुज लॉ ऑफ द रेशनल इंडिसेस। नाउ अब हम डेजिग्नेशन करेंगे क्रिस्टल प्लेन को, हम कैसे डेजिग्नेट कर सकते हैं। फर्स्ट, इन टर्म्स ऑफ वेस इंडिसेस, वेस ने कहा कि जो हमारे पास कोई भी यूनिट प्लेन होता है, कोई भी प्लेन होता है जो उसके इंटरसेप्ट होंगे, वो n नंबर ऑफ मल्टीपल्स होंगे, वो होल नंबर मल्टीपल्स होंगे यूनिट प्लेन के। तो इसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, कोई ज्यादा यूज नहीं किया। उसके बाद आते हैं मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस, इट सेज दैट we will choose मिलर इंडिसेस। क्या होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, हमारे पास क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, कोई प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है इन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को एट एनी पॉइंट, से 1, हम ये कह सकते हैं ये है हमारे पास के एल एम एन प्लेन, एंड इट्स द वाई एक्सिस, इट्स द जेड एक्सिस, एंड इट्स द एक्स एक्सिस। सो these are the intercept. We can say OK is the intercept and OL is the intercept and OM is the intercept, which is made by this plane on the x-axis, on the z-axis, and on the y-axis. So we can say it's A, it's B, and it's C. Here we can say here it's 2 times, is हमारे पास ये है 3 times, and it's a 4C. Then it say that जो हमारे पास इंटरसेप्ट आते हैं, कोई प्लेन है वो कट करता है एक्सिस को, तो जो इनके कोफिशिएंट होगी इंटरसेप्ट के, हियर कोफिशिएंट क्या है 2, 3 and 4। अगर हम इन कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल करें तो 1/2, 1/3, 1/4 होगा। तो मिलर इंडिसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द इंटरसेप्ट which is made by a plane on the crystallographic axis, and by converting them to the whole number by taking the LCM of the denominator. So here this 1/2, 1/3, 1/4 is in the fraction. तो हम क्या लेंगे, अब LCM लेंगे, 2, 3, 4 का LCM आएगा हमारे पास 12। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, ये 4, ये 12, तो 6:4:3 क्या आएंगे हमारे पास इंटरसेप्ट मिलर इंडिसेस होंगे इस प्लेन के ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो कोई भी हमारे पास प्लेन है, अगर उसके इंटरसेप्ट गिवन है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसका रेसिप्रोकल करेंगे कोफिशिएंट का, और उनका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, और उनको होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो दीज आर अबाउट द मिलर इंडिसेस। कुछ फीचर्स थे इसके, फॉर एग्जाम्पल इट सेज दैट कोई भी यूनिट प्लेन है उसके जो इंटरसेप्ट होते हैं वो 1, 1 होते हैं, और उसके मिलर इंडिसेस भी क्या रहेंगे, 1, 1 ही रहेंगे। सेकेंड, इट सेज दैट अगर हमारे पास कोई भी प्लेन है, उसकी कोई वो कट नहीं कर रहा है एक एक्सिस को, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास आता है इंटरसेप्ट 1A, 2B एंड इनफाइनाइट C, यानी वो कट नहीं कर रहा है एक एक्सिस को। पहले हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे और फिर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 1, ये 1/2, और ये आ जाएगा 0। इसको हम होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 210 विल बी द इंटरसेप्ट।
वो कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि जो हमारे पास प्लेन है वो एक्सिस को मतलब अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में कट नहीं कर रहा, तो अगर वो नेगेटिव में कट कर रहा है तो हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे बार के मतलब उस कोफिशिएंट के ऊपर बार रिप्रेजेंट करके। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द मिलर इंडिसेस। हम कैसे कहाँ क्या ड्रा करते हैं। तो दीज आर अबाउट मतलब सिंपल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमें इंटरसेप्ट मिलेगा, उस इंटरसेप्ट का हमें क्या करना है, उनके कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल करना है और उनका क्या ले लेना है, एलसीएम करके उनको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो दीज आर अबाउट द सिमेट्री ऑपरेशन, एक्सियल रेशियो, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एंड द वेस इंडिसेस, मिलर इंडिसेस एंड हुल्स लॉ ऑफ इंडिसेस। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।